السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز اور میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ اہم خبر سے آغاز کریں۔ 14 مئی فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، مگر فیصلہ تاریخ بن چکا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کب اور کہاں 90 روز کی مدت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ 90 روز میں الیکشن آئینی تقاضا ہے۔ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف فراہمی میں رکاوٹ کے برابر ہے۔ انصاف کی فراہمی تو مولا کریم کا کام ہے۔ حق کے کام میں جو دخل دیتا ہے اس کی اپنے نتائج ہیں۔ آئین پر سب متفق، لیکن نفاذ پر سب واضح نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے عدالتی اصلاحات بل انتخابی نظر ثانی کیس میں ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالتی اصلاحات بل نافذ ہو چکا ہے تو عدالت کیسے پنجاب انتخابات کیس سنے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کو واپس لینا ممکن نہیں۔ فیصلہ ایک اصول طے کرتا ہے کہ 90 دن سے الیکشن آگے نہیں جا سکتا۔ آئین ایک خوبصورت دستاویز ہے جسے ہم سب مانتے ہیں۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اور پنجاب انتخابات نظر ثانی درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا نظر ثانی پر نیا قانون آئین سے متصادم اور پریکٹس اینڈ پروسیجرز قانون کا تسلسل ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی ایکٹ کو کسی سٹیج پر دیکھنا ہی ہے، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، عدالت کیسے پنجاب انتخابات کیس سنے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ نئے قانون کی شق 5 کا اطلاق پنجاب الیکشن کیس پر نہیں ہوتا، عدالت دونوں قوانین کو کالعدم قرار دے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے دیکھنا ہے کہ کب اور کہاں 90 روز کی مدت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس کے نتائج بھی دیکھنے ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، وفاق، صدر، سیکرٹری سینٹ اور وزارت پارلیمانی امور کو نوٹسز جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت 13 جون کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبدالرزاق شر کا قتل۔ مقتول کے بیٹے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف قتل کا مقدمہ کوئٹہ کے جمیل شہید تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبدالرزاق شر کا مقدمہ قتل کا اور مقتول کے بیٹے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قتل کا مقدمہ کوئٹہ کے جمیل شہید تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مقتول کے بیٹے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ قتل کا جو مقدمہ ہے درج کروایا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد میں نوسر بازی کا مقدمہ درج۔ زلفی بخاری اور شہزاد اکبر بھی نامزد ہیں۔ لاہور میں بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا اور سابق وزیر اعلیٰ عثمان بسار سمیت متعدد افراد کے خلاف رشوت ستانی کا مقدمہ اینٹی کرپشن نے گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ نیک نامی بدنامی میں بدلنے لگی۔ بشرا بی بی مزید مقدموں کی زد میں۔ اسلام آباد میں نوسر بازی کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوہسار میں FIR درج کرا دی گئی ہے، جس میں ان کے علاوہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 2 مزید افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست آرٹ آف ٹائمز کے ملازم نے دکان کا جعلی لیٹر ہیڈ استعمال کرنے کے خلاف جمع کرائی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے توشخانہ کے تحائف بیچنے کے لیے دکان کا لیٹر ہیڈ اور جعلی دستخط استعمال کیے۔ درخواست میں دفعہ 420 سمیت نوسر بازی اور ہیرا پھیری کی متعدد افراد کے تحت FIR درج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ادھر پنجاب میں مبینہ طور پر رشوت لے کر تعیناتیاں اور تقرریاں کرنے پر بھی اینٹی کرپشن میں ایک مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا اور سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت 8 اہم شخصیات کے نام شامل ہیں۔ رشوت ستائی کا یہ مقدمہ تھانہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں درج کیا گیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اور ناظرین، 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بشرا بی بی نے نیب کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ سابق خاتون اول کی جانب سے بطور گواہ طلبی کا نوٹس کو جمع کرا دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ کیس سے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آپ شامل تفتیش کرنے کے لیے ٹھوس مواد مہیا کریں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ 13 جون تک بشرا بی بی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت کا یہ حکم ہے۔ سابق خاتون اول کے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اسپیکر اسمبلی امجد زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، عہدے سے برطرف ہو گئے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر کے حق میں صرف 1 ووٹ ڈالا گیا۔ 21 ارکان نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کا عمل تھوڑی دیر میں شروع ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان سے، جہاں پر اسپیکر اسمبلی مستعفی ہو گئے ہیں، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کا عمل تھوڑی دیر میں ہی شروع ہوگا، جبکہ ان کے حق میں 1 ووٹ ڈالا گیا۔
जहांगीर तरीन सियासी महाज पर सरगर्म नई सियासी जमात का नाम फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अवामी इंसाफ पार्टी के नाम से नई पार्टी रजिस्टर्ड करा ली। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। बड़ी तादाद में साबिक अरकाने सूबाई कौमी असम्बली टिकट होल्डर्स और रहनुमा नई जमात में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जहांगीर खान तरीन का नाअहली के बायस नई सियासी पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान है। नाअहली खत्म होने की सूरत में जहांगीर तरीन पार्टी चेयरमैन होंगे, जबकि पार्टी के पहले सदर अब्दुल अलीम खान हो सकते हैं। जहांगीर तरीन आज अपने ग्रुप से हतमी मुशावरत करेंगे। उधर अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के एजाज में इशाया देंगे। नाज़रीन, जहांगीर तरीन से उच्च शरीफ से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी की मुलाकात हुई। मुख्तलिफ सियासी अमूर और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलने की यकीन दहानी करा दी। सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी मुसलसल 5 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन PCB नजुम सेठी कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म हैं। क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए नामजद कर दिया। पैटर्न इन चीफ ने जल्द PCB चेयरमैन के इलेक्शन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का अशरफ को चेयरमैन PCB लगाना चाहती है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी को। शाकिर, बताइएगा मुलाकात का हवाल। जब गवर्नमेंट तश्कील पाई थी तो ये तय पाया था कि जिस पार्टी की जो वजारत होगी उसके ज़ेली इदारों में उसी के ही जो है वो नॉमिनेटेड लोग तैनात होंगे। लेकिन PCB में नजम सेठी को उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका सरबराह लगाया गया था। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता पीपल्स पार्टी के पास है और स्पोर्ट्स उसका ज़ेली इदारा है। तो अब पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की है कि PCB का चेयरमैन भी उनकी तरफ से लगाया जाए और राय कंफर्म करें कि ज़का अशरफ को जो है वो पीपल्स पार्टी ने नामजद किया था। उसके बाद से नजम सेठी जो मुतारक हुए, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ से भी मिला था, फिर वापस आज वज़ीर आज़म से मिले। गालिब इम्कान यही है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने नजम सेठी पर एतमाद का इज़हार करते हुए उनकी जो अब तक की कारकर्दगी है उसको सराहा है और उन्हें जो है वो जो इलेक्शन होने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के छूट उसके लिए नामजद भी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को ये हुक्म दिया है कि वो जल्द अज जल्द PCB का जो इलेक्शन अमल है उसे मुकम्मल करें। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जो PCB का 2014 का आइन जिसे इमरान खान की हुकूमत में जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। अच्छा शाकिर, ये भी बताएगा कि क्या वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को क़यादत को इस हवाले से मना लिया है? जी बिल्कुल। अगर बात करूँ मैं इंटरनल जो इनकी आपस में जो एक इस पर मुशावरत हुई है तो नजम सेठी इस मुलाकात के बाद गालिब इम्कान ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे और उनको भी कायल करेंगे। नजम सेठी की पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी जो है वो ताल्लुकात कुछ ज़्यादा जो है वो कशीदा नहीं है, वो उनके गुड बुक में शामिल होते हैं। तो गालिब इम्कान ये है कि वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया उनको नॉमिनेट करने का बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन के लिए, वो यकीनन ताजियों से मुशावरत के बाद भी ही हुआ होगा। और इसके बाद वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को इस हवाले से आगाह भी किया कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मिलें और अपने हवाले से जो उनके खदशात हैं उन्हें दूर करें। बहरहाल इस वक्त की जो आज की मुलाकात के बाद की जो खबर है, ज़रा कंफर्म करें कि वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जो इलेक्शन होना है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का उसके लिए नॉमिनेट कर दिया है और वही मुमकिन तौर पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी। बल्दिया उस्मा कराची के कौंसिल हॉल की किस्मत 2.5 साल बाद जाग उठी। 121 मखसूस नशिस्तों के मेंबर्स की हल्फ बर्दारी, जमात इस्लामी के मेंबर का स्क्रूटनी न होने पर एहतजाज। हल्फ बर्दारी की तकरीब हंगामा आराई के बावजूद जारी रही। कमिश्नर कराची के एहतजाज करने वाले अरकान को बाहर निकालने की धमकी भी सामने आ गई। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सदीकी से। मोना सदीकी, बताइएगा, एहतजाज जारी रहा लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब होती रही। इस हवाले से आपको बताया कि जमात इस्लामी का मेंबर्स का जो एहतजाज भी जारी था, हल्फ बर्दारी की तकरीब हंगामा राय के बावजूद जारी रही है और 121 अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। बल्दिया उस्मा कराची के कौंसिल हॉल की जो किस्मत है वो 2.5 साल के बाद जाग उठी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर हाज़री, मनाजात पढ़ी, नमाज भी अदा की गई है। तो आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर गए, हाज़री दी, मनाजात पढ़ी और वहां पर नमाज की अदायगी भी की, फातिह ख्वानी भी की गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अपने वफ़द के हमरा पहुंचे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर हाज़री दी गई।
बात करें जिन्ना हाउस पर हमले के बाद पीटीआई का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। शरपसंद इमरान को एजेंसीज का बंदा करार देने वाली पीटीआई को मुंह की खाना पड़ी। इमरान महबूब होटल मुलाजिम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। आपको बताएं कि जिन्ना हाउस हमले केस के हवाले से यह अहम अपडेट है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि पीटीआई का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। शरपसंद इमरान को एजेंसीज का बंदा करार देने वाली पीटीआई को मुंह की खाना पड़ गई। 9 मई के जलाओ घेराव, तोड़फोड़ और अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने के बाद तहरीक इंसाफ का सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ भयानक प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया। शरपसंद इमरान को एजेंसियों का बंदा करार देने वाली पीटीआई को मुंह की खाना पड़ गई। शरपसंद शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद शख्स का नाम इमरान महबूब है, जिसकी तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी कर दी। शरपसंद इमरान महबूब को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तिदा में ही जिन्ना हाउस भेजा गया ताकि उसे एजेंसियों का अहलकार करार देकर हमले का सारा इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर थोपा जा सके। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है। तहरीक इंसाफ ने इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसियों का बंदा करार देते हुए झूठा, बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया था। ये बंदा जो है ये सिविलियन है, ठीक है, इसका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। ऐसे घनौने प्रोपेगेंडे से सच को नहीं बदला जा सकता और न ही जराइम को झूठ की आड़ में छुपाया जा सकता है। ऐसे तमाम किरदारों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। जिन्ना हाउस की तबाहशुदा हिस्सों को देखकर नहायत दुख का इजहार किया गया। 9 मई के दिलसोज वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। असातिज़ा और तलबा ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। लोग इसमें इंक्लूड हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। मेरी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज हम जिन्ना हाउस के विज़िट के लिए यहाँ आए हैं और हमें देख के इंतहाई अफसोस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें जला दी गई हैं। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बजट के हवाले से बात करें तो आइंदा माली साल के बजट में वफाकी हुकूमत का आवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान है। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में मजीद 10 रुपए इजाफे पर गौर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक लेवी 10 रुपए फी लीटर बढ़ाने से नॉन टैक्स आमदन 2.9 ट्रिलियन तक हो सकती है। हुकूमत को मजीद 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। आपको बताएं, बजट में वफाकी हुकूमत का आवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान तैयार है। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी ग्रोथ 0.3% तक रही। 2023 में फीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड की गई। ज़राअत, सनत, टेक्सटाइल और मादनियात की शरह नमू में कमी हुई है। तालीम के शोबे की ग्रोथ 4.9% हदफ के मुकाबले में 10.44% रही। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल 4:30 बजे पेश किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। रवा माली साल 2022-23 का इक्तसादी सर्वे कल 4:30 बजे पेश किया जाएगा। सर्वे के अहम निकात के मुताबिक रवा माली साल मुल्की मेशियत को सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना रहा। मुआशी शरह नमू 0.3% रही, जबकि हदफ 5.01% था। रवा माली साल के दौरान ज़रूरी शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जबकि हदफ 3.9% मुकर्रर था। शदीद सैलाब ने ज़राअत दीगर इक्तसादी शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। फसलों की शरह नमो -2.49% रही। इसी तरह फिशरीज के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही, जबकि हदफ 6.1% था। जबकि जंगलात के शोबे की शरह नमो 3.93% रही। जंगलात के शोबे की शरह नमो का हदफ 4.5% मुकर्रर था। बड़ी सनतों की ग्रोथ -7.98% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 7.4% था। तामीरात के शोबे की शरह नमो -5.0
3.53% रही, जबकि इसकी तरक्की का हदफ 4% था। बाज़ शोबों में मस्बत नमो भी देखने में आई, जिनमें बिजली, गैस, पानी और तालीम शामिल हैं। बिजली, गैस और पानी फ्राहमी की शरह नमो 3.5% हदफ के मुकाबले में 6.03% और तालीम के शोबे की ग्रोथ 4.9% हदफ के मुकाबले में 10.44% रही। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज।